अभी आप लेट आ गया दीपक दादा। नहीं नहीं, लेट नहीं, मैं सुन रहा था सब कुछ। नहीं, आपको बताने का था, ये सूत्र ठीक है ना, इसके बाद वो कुछ बोलने का था। नहीं, बराबर है, लेकिन अभी उनको ये वाटरिंग का है ना, बहुत अच्छे से फोकस करके वो देखो। एक एक शॉर्ट बात है, ये ड्रिप इरिगेशन सुना है? ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या है? पानी को सारे खेत में छोड़ दिया तो कितना वेस्ट होता है। और खेत में यानी आपने अपने फील्ड में 20 पौधे लगाए और 20 पौधों को ही आप ट्यूब से पानी पहुंचाते हो, तो कम पानी में ज्यादा परिणाम आएगा कि नहीं? आएगा। इस तरह से फोकस्ड वाटरिंग करना है। और उसके साथ में निंदामण भी नहीं होता ड्रिप इरिगेशन से। हाँ, वो बात बड़ी है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि दीपक पानी दादा, दूसरे को मिलता ही नहीं है। दीपक दादा, ये तुम ये सूत्र कनेक्ट से हो जाएगा उसके साथ। अच्छा, ये करेक्ट। ओके, जो उसमें मैंने क्या हो गया? पूछा नहीं, बच्चे लोग के सूत्र और राइट, वाटरिंग के साथ क्या कनेक्शन है। करेक्ट। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय गीता बहन, आज हिंदी में है सत्संग। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, आ बुक नंबर 8 तारीख 24/6/69, દાદાની પોળ વડોદરા. નીચે પેજ 11 of 59. સૌથી ઉપરનો પેરેગ્રાફ પહેલો જ. મોક્ષ એટલે મુક્ત ભાવ. બોલો બોલો બોલો. બોલો હા, સ્ટાર્ટિંગ છે. સંતોષાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે મોક્ષ એટલે મુક્ત ભાવ, વૃત્તિઓ હેરાન ના કરે. મોક્ષનું ઓપોઝિટ પરવશપણું, પરાધીનપણું. એક જ મિનિટ, અડધો કલાક લાગશે. ચાલ રાઈટ. હાજી હાજી. મોક્ષનું ઓપોઝિટ પરવશપણું, પરાધીનપણું ને બંધન. એમાંથી મુક્તિ એટલે સ્વાધીનપણું. સ્વની સત્તામાં રહેવું તે મોક્ષ. મનુષ્યપણું એક ટેસ્ટ એક્ઝામિનેશન છે, પેપર લખવાનું છે, પણ લોકો તો ટેબલ પર બેસીને ખાય છે, પીવે છે ને મોજ કરે છે. કોઈને પેપર લખવાનું છે તે યાદ જ નથી. પેપર જોયું નથી ને એ પેપર લખી પાસ થયા એટલે મોક્ષે જવાય. પેપર જ જોયું નથી ને એ પેપર લખી પાસ થયા એટલે મોક્ષે જવાય. સાહેબ આમાં થોડો પ્રકાશ આપીને સમજાવો ને. આમાં છેલ્લું શું લખ્યું? પેપર જ જોયું નથી ને પેપર લખી પાસ થયા એટલે મોક્ષે જવાય. લગભગ એવું હોવું જોઈએ. જવાય ક્વેશ્ચન માર્ક હોવો જોઈએ. પછી હવે કારણ કે જે વાત છે ને એના ઉપરથી, એટલે આમાં શું કીધું? મોક્ષ એટલે મુક્ત ભાવ, વૃત્તિઓ હેરાન ના કરે. મોક્ષનું ઓપોઝિટ પરવશપણું, પરાધીનપણું, બંધન. હવે એમાંથી મુક્તિ એટલે સ્વાધીનપણું, સ્વની સત્તામાં રહેવું તે મોક્ષ. મનુષ્યપણું એ એક ટેસ્ટ
એક્ઝામિનેશન છે, પેપર લખવાનું છે. એટલે દાદા ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ રીતે કીધું અને શાસ્ત્રમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે બધું બતાવ્યું છે કે મનુષ્યપણાની અંદર સ્વસત્તા ખુલ્લી થાય છે. ખરેખર ખરેખર તો કે એ સ્વસત્તા કઈ ખુલ્લી થાય છે? તો કે હવે કઈ ગતિમાં જવું એ અહીંયા નક્કી થઈ શકે છે. એટલે મનુષ્યપણાને ટેસ્ટ એક્ઝામિનેશન કીધું. તો કે અહીંયા બધી એક્ઝામો બાકી દેવગતિ છે, તિર્યંજ ગતિ છે, નર્ક ગતિ છે, એ બધું બંધન છે. એ બધો ખાલી ભોગવટો છે. એમાં નવું કશું આપણે ઉપાર્જિત કરી શકતા નથી. કોઈ પણ નવું કર્મ બંધાતું નથી. બરોબર છે. ખાલી મનુષ્યપણું જે કેવું છે કે એમાંથી મુક્ત થઈ શકાય છે. એટલે કીધું કે મોક્ષ એટલે મુક્ત ભાવ, વૃત્તિઓ હેરાન ન કરે. અને એનો ઓપોઝિટ શું કીધું? પરાધીનપણું, પરવશપણું, પરાધીનપણું અને બંધન. હવે ખાલી આમાંથી ખાલી એકલું બંધન સમજાઈ ગયું ને તો એ આપણું કામ થઈ ગયું. દાદા ભગવાન કે આ બંધન ખાલી મનુષ્ય જન્મની અંદર જ સમજી શકાય એવું છે. हाँ, सॉरी. तो कि ये बंधन शब्द है ना, बंधन, वो मनुष्य जन्म के अंदर ही समझ में आ सकता है. उसके अलावा कोई गति में समझ में नहीं आ सकता मैं बंधा हुआ हूं. क्योंकि वहां पे सिर्फ भुगतान ही करने का है. भोगवने का खाली. हाँ, इसलिए कि ये मनुष्य जन्म है, उसके अंदर जो हम एग्जाम दे के आए हैं उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं. और ये परिणाम भुगतते समय हम नई एग्जाम दे रहे हैं साथ में. करेक्ट. नया पेपर हम लिख रहे हैं. नया पेपर तो लिख रहा है. हाँ, तो वो नया पेपर जो लिख रहे हैं तो वो पेपर कैसे लिखना वो हमारे हाथ में आया अभी. एग्जैक्ट. इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया इसके अंदर કે પણ લોકો તો ટેબલ ઉપર બેસી ખાય છે, પીવે છે ને મોજ કરે છે. કોઈને પેપર લખવાનું છે તે યાદ જ નથી. પેપર જોયું નથી ને એ પેપર લખી પાસ થાય એટલે મોક્ષે જવાય. कि यहाँ पे रहस्य खुला किया कर्म का दादा भगवान ने. हाँ जी. तो कि जो लिखने का हमें मिला है सत्ता, उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है. हम बस मौज मस्ती में खोए हुए हैं. क्या लिखने का है, कैसे लिखने का है, वो उसके ऊपर हमारी दृष्टि ही नहीं है. अगर वहां पे दृष्टि नहीं है तो फिर हम पास होंगे नहीं. पास मनुष्य जन्म में पास होंगे तो मोक्ष में जाएंगे. हाँ जी, बरोबर. तो कि वहां पे किसी की दृष्टि ही नहीं गई है. दृष्टि जाएगी कब? तो कि परवशपणु, पराधीनपणु और बंधन, ये जब हमें समझ में आएगा तब सही मायने में हम मनुष्य जीवन के अंदर जो हमें लिखना है, जहां पे हमारी दृष्टि गोचर होनी चाहिए वो होगी. तभी हम पास हो पाएंगे और मोक्ष में जा पाएंगे. बरोबर. इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया? तो कि अभी हमें ये जो दृष्टि प्राप्त हुई है, मैं कौन हूं उसका भान हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा फल क्या पहले हुआ? तो क्या आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बंद हो गया. हाँ. और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुरू हो गया. हाँ, करेक्ट. तो कि ये ध्यान है, ये चारों ध्यान है, वो हमारी समझ और अणसमझ का परिणाम है. अगर हमारे पास सही समझ नहीं है, मैं कौन हूं वो नहीं है, वो भान नहीं हुआ है, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जाता है पूरा जीवन. हाँ जी. ये समझ हो गई, ये समझ प्राप्त हो गई, तो जहां पे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता था वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होगा. उसका मतलब वहां पर धर्म ध्यान शुरू हो गया. और हमें जो ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूँ और उस पद के अंदर हम रहे, तो वो शुक्ल ध्यान खड़ा हो गया. ध्यान खड़ा हो गया. हाँ जी. हाँ,
बरोबर तो છે. बहुत ही आसानी से दादा भगवान ने एक ज्ञान दे के हमें किन कैसी कैसे जगह से निकाला है, वो तो जैसे जैसे ये ज्ञान समझ में आएगा वैसे वैसे पता चलेगा. પતા ચલેગા. સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. पूरा जगत आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन समझ सही प्राप्त नहीं होने के कारण उसी के अंदर डूबा हुआ है. इसलिए दादा भगवान ने बताया इस काल की 80% रिटर्न टिकट लेके आए हैं એ, कि जहां से आए हैं वहां वापस जाने वाले हैं. ઓહો હો. સાચી तो વાત છે. हमें समझ लेना चाहिए कि हमें ये विज्ञान मिला तो उसकी वैल्यू क्या है, और ये हमें समझने के लिए हमारे अंदर कितना सिंसियरिटी होना चाहिए वो हमें समझना है. સાચી વાત છે. કરેક્ટ 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 કરેક્ટ. બસ બરોબર, સરસ સમજ. બરાબર. એટલે હા, તમે? અભી દાદા ભગવાનના પેપરમાં લખીને આપણે બસ પાસ થઈ જઈએ અને મોક્ષે જઈએ એવા આશીર્વાદ આપે. दादा भगवान ने हमें जो अभी 5वीं आज्ञा दी ना, कौन सी दिया? શુદ્ધાત્માના ચોપડે रकम जमा करवी. हाँ, वो हमारा वो चौपड़ा चालू हो गया. चालू हो गया. अभी 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 और कोई चौपड़ा चितरने का बाकी रहा नहीं. डेबिट क्रेडिट वाला चौपड़ा चला गया. हाँ, बस ये जो पेपर लिखना है ना, वो डेबिट क्रेडिट वाला है. हाँ जी, उसमें हाँ, से भी हमें बाहर निकाल दिया दादा भगवान ने कि correct. अभी सिर्फ क्रेडिट, लेकिन कौन सा क्रेडिट? मोक्ष फल वाला. मोक्ष फल वाला. हाँ, वो क्रेडिट वाला चौपड़ा चालू हो गया शुद्धात्मा का. सरस सरस. बराबर. जन्म मरण का जो था पेपर हाँ, लिखने का, वो चला गया अभी हमारा. चला गया. सरस 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 सरस. संतोषानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दीपक भाई. हरेक महात्मा को जय सच्चिदानंद. दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दीपकानंद जी 14 हफ्तों भाग 3 है, उसमें हाँ? 7.1 है केवल ज्ञान. एक मिनट 14वीं हफ्तवाणी है पार्ट. पार्ट 3 और हाँ 7.1 केवल ज्ञान ની समझ 64 पेज नंबर 64. पढ़ू क्या हाँ मैं? हाँ बोलिए. हाँ, संतोषानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. કેવળ જ્ઞાનનો પરિચય અર્થ એવો લોકો કરે છે કે આખી દુનિયાનું બધું દેખાવું, પણ એવો ને એટલો જ અર્થ નથી. મૂળ અર્થ આત્મા એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને જ્ઞાનમાં જ કેવળ આત્મામાં જ હું પણ હું, બીજી કોઈ ચીજમાં હું પણ નહીં. આત્મા એ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, એ કેવળ જ્ઞાન માત્ર છે. આ જ્ઞાન સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ જ નથી. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપી છે એટલે કે એબ્સોલ્યુટ છે, નહીં કે બધું દેખાય તે માટે. આટલો પેરા છે, લાસ્ટ પેરા છે, પેરેગ્રાફ 64, પેજ નંબર 64, 7.1. તમારો ક્વેશ્ચન શું છે? ક્વેશ્ચન એ છે કે એબ્સોલ્યુટ પણ એમાં શું કહેવા માંગે? જ્ઞાન એ જ આત્મા છે. જ્ઞાન એ જ આત્મા છે. આત્મા એ જ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. કેવળ આત્મામાં હું પણ, કેવળ આત્મામાં હું પણ સંતોષાનંદજી. हाँ जी. બીજી કોઈ ચીજમાં હું પણ નહીં. એટલે કેવળ જ્ઞાનની વાત કરી છે. આખી દુનિયાનું હા, એટલે શું, એટલે આખી વાત શું છે? હા, આમાં લખ્યું છે જો કેવળ જ્ઞાન એટલે કેવળ જ્ઞાન પ્રચલિત અર્થ એવો કરે છે આખી દુનિયાનું બધું દેખાય. હા, એટલે આ લૌકિક દ્રષ્ટિથી લોકો જે સમજે છે કે હા, સાહેબ, કેવળ હિન્દીમાં- જ્ઞાન, हिंदी. हाँ, ये लौकिक मान्यता से हम लोग ये समझते हैं कि केवल ज्ञान होना यानी सब कुछ देखने का, सब कुछ दिखाई देना.
कि आखी दुनियाનું બધું દેખાય, यानी पूरे जो ब्रह्मांड का है वो सब कुछ दिखाई दे, ऐसा लौकिक दृष्टि से, लौकिक मान्यता से जो प्रचलित अर्थ है वो ये है। लेकिन હકીકત ક્યાં હે તો કે મૂળ અર્થ આત્માનો એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને જ્ઞાનમાં જ केवल आत्मा જ હું પણ બીજી કોઈ જગ્યાએ નહીં। यानी वो क्या बताना चाहते हैं दादा भगवान, तो कि आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हम लास्ट में हम बताया ना दादा भगवान ने कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, बराबर। तो कि ये जो केवल ज्ञान की जो बात है तो कि वो स्वरूप हमें दे दिया है, वो स्वरूप में हमें वो स्वरूप में हमें बिठा दिया है। लेकिन जो ये बताया ना केवल आत्मा में ज हूँ पण, तो कि ये क्या बताना चाहते हैं दादा भगवान के केवल आत्मा में मैं ही हूँ है। तो कि जो पहले हमारा हूँ कहाँ पे था, तो कि मैं संतोष हूँ, तो मेरा हूँ वहां पे था, तो वो हमारा हूँ कहाँ पे प्रतिपादित कर दिया, तो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, तो कि वो हूँ अभी यहाँ पे आ गया। लेकिन दादा भगवान ने आगे क्या बताया, तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शब्द का अवलंबन कब तक है, तो कि जब तक हमें केवल ज्ञान खुला नहीं हुआ है तब तक है। जब केवल ज्ञान खुला हो जाता है तो फिर ये ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। उसी को एब्सोल्यूट बोलते हैं, उसी को बताया एब्सोल्यूट। अच्छा, उसी को उसके बाद का संतोष ने उसके बाद का एक सेंटेंस है वो जरा पढ़िए आप। જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ના થાય, જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ના થાય, આગળ જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ના થાય ત્યાં સુધી જ્ઞેયો જોવાના, ત્યાર પછી બ્રહ્માંડના જ્ઞેયો જળકે। જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ના થાય ત્યાં સુધી મહીના જ્ઞેયો જોવાના। हाँ, तो वो क्या बताना दादा भगवान, बहुत सिंपल सा दादा भगवान ने बताया कि जब तक हमारी मन वचन काया रूपी प्रकृति जो ज्ञेय स्वरूप है वो हमने ज्ञान में उसको ज्ञेय स्वरूप से देख लिया तो वो पूरा हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो फिर हमारा जो दादा भगवान ने स्थूल एग्जांपल दिया, तो कि आत्मा कैसा है, तो कि दर्पण जैसा है। अगर दर्पण के सामने जाएंगे तो क्या होगा, अपना दिखेगा, खुद दीपक भाई जैसा है वैसा दिखाएगा। उसको कुछ लेना देना नहीं है ये कैसा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसा है वैसा वो हमें दिखाता है। तो कि वो बताया दादा भगवान ने कि ज्યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ના થાય ત્યાં સુધી મહિના જ્ઞેયો જોવાના અને ત્યાર પછી બ્રહ્માંડના જ્ઞેયો ઝળકે। यानी उसमें प्रयत्न नहीं है, कोई भी प्रकार का प्रयत्न नहीं है। वो इटसेल्फ दर्पण के आगे जैसे हम जाते हैं वैसे जैसे हम दिखाई देते हैं वैसे ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, कहने का मतलब। संतोष आनंद जी, जो ब्रह्मांड पिंडे सो ब्रह्मांड मीनिंग जो बाहर जो सब ब्रह्मांड है, पूरा आकाश सूर्य तारा वही सब वही पिंड में देखो दादा भगवान ने जो बताया उसका बहुत सटीक समझ दादा भगवान ने दी, वास्तविकता दी। पिंडे सो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड सो पिंड। तो क्या जगत का जो लोग बोलते हैं ना, तो पिंड के अंदर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड पिंड में है। तो क्या दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि ये जन्म है, जन्म हुआ तो कहाँ पे आए आप, इस दुनिया में आए, जन्म ब्रह्मांड में आए, ब्रह्मांड में आए, बराबर है। तो आपका ब्रह्मांड, पहला ब्रह्मांड कौन है आपका, पहला ब्रह्मांड तो कि मन वचन काया हमारा जगत है, दादा भगवान ने बताया। अच्छा, मन वचन काया वो जगत। हाँ, वो ही ब्रह्मांड। अच्छा, और ये ब्रह्मांड से नया पिंड जन्म हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। अच्छा, यानी प्रतिष्ठित आत्मा जब नया बनता है वो।
हाँ, अभी प्रतिष्ठित आत्मा जो हम लेके आए हैं, अभी हम जो भुगत रहे वो प्रतिष्ठित आत्मा है, तो वो परिणाम स्वरूप है, और उसके आधार पर हम नए प्रतिष्ठित आत्मा का बंधन कर रहे हैं। अच्छा, यानी इसलिए पिंड से ब्रह्मांड है। हाँ हाँ, तो कि ये मनुष्य जन्म में इसलिए बताया कि मनुष्य जन्म में इतनी शक्ति है, इतनी सत्ता खुली होती है, तो कि बाकी की 3 गति में हम भुगतने के लिए जाना पड़ता है, और यही मनुष्यपने में वो शक्ति खुली होती है कि हम सिद्ध गति में जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। सही बात है, सही है। मनुष्य गति में हाँ, सही बात है। ओके ओके, जय बराबर है। सच्चिदानंद। दीपक भाई, हाँ, जय सच्चिदानंद। वैशाली बहन, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद जय संतोषी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારે આ શબ્દોનો અર્થ સમજવો છે. આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાન એટલે શું? वैशाली बेन, Yeah. आर्त ध्यान यानी दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, काम करने से पहले हमें अंदर खड़ा होता है कि होगा कि नहीं होगा। Right. तो उसको दादा भगवान ने सिंपल शब्द में क्या बताया, चिंता। तो अंदर जो चिंता होती है उसको दादा भगवान ने आर्त ध्यान बताया, क्योंकि चिंता किसको होती है, तो कि जो जिसको समझ में नहीं है कि कैसे चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, उसको करने वाला कौन है वो समझ में नहीं आता, इसलिए खुद करने वाला बन जाता है, तब जाके चिंता जन्म लेती है। मुझे करना है इसलिए चिंता जन्म लेती है, और वो अंदर जो चिंता जन्म लेती है उसको दादा भगवान ने आर्त ध्यान बताया। दूसरा क्या बताया आर्त ध्यान दादा भगवान ने, तो कि खुद को ही पीड़ा दे, मन वचन, खुद के जो मन वचन का है लेके आए हैं उसको ही पीड़ा दे, उसको भी आर्त ध्यान बताया दादा भगवान ने। कष्ट दे, अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है उपवास बराबर। करने की, हाँ, फास्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो जोर जबरदस्ती से मैं फास्ट करवाऊंगा तो क्या होगा, नहीं मेल पड़े, दुख दुख થાય શરીરમાં. हाँ, शरीर को परेशानी होती है, दुख होता है ना। हाँ. तो कि जबरदस्ती से अगर मुझे कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ मेरी फेवरेट चीज खाने में आ गई, और मैंने शरीर को पूछा ही नहीं मुझे कितना खाना है, और उससे ज्यादा खा लिया क्योंकि मुझे पसंद है, तो क्या हुआ, शरीर को कष्ट हुआ। नुकसान होता है. हाँ. तो कि इसको भी दादा भगवान ने अर्थ ध्यान बताया कि मन वचन काय को भी कष्ट देना, उसको भी अर्थ ध्यान बताया। और सबसे बड़ा अर्थ ध्यान क्या बताया, तो कि चिंता को अर्थ ध्यान बताया, क्योंकि चिंता यानी हम करने वाले बन गए इसलिए चिंता होती। फिर दूसरा बताया रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान यानी क्या बताया, तो कि अपने को कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, फिर भी दूसरे की चीज हम छीन लेते हैं, दूसरों को नुकसान करते हैं, तो उसको दादा भगवान ने रौद्र ध्यान बताया। दादा भगवान ने क्या बताया कि अपने मन वचन काया से किसी भी जीव को हम हिंसक रूप परिणाम, हिंसा का परिणाम देते हैं, दुख देने का परिणाम देते हैं, तो वो सभी को रौद्र ध्यान बोला गया। आर्त ध्यान यानी खुद को पीड़ा देना, हाँ. चिंता करके खुद को पीड़ा देना, और रौद्र ध्यान यानी अपने दूसरों को पीड़ा देना। રૌદ્ર ધ્યાનનું એક એક્ઝામ્પલ આપો ને તમે. रौद्र ध्यान નું एग्जाम्पल दादा भगवान बताते थे कि हम रास्ते पर जा रहे हैं और किसी भी चीज पर हमारी दृष्टि गई और अंदर से बताया कि ये बहुत अच्छा है, बराबर है,
अभी वो चीज दूसरे की मालिकी की है और वो हमें देना नहीं चाहता है, फिर भी उनसे जबरदस्ती छीन के हम ले लेते हैं। ऐसा अंदर भाव होता है, ऐसा हमें अंदर भाव होता है, उसको रौद्र ध्यान बताया। इसलिए उस और आसानी से समझना है तो दादा भगवान ने बताया, जो हमारे हक की चीज नहीं है उसको प्राप्त करने का जो अंदर भाव होता है उसको रौद्र ध्यान बताया। એટલે અંદરનો જે હિંસક ભાવ થાય તે. हाँ, दूसरों के प्रति બરાબર. जो हमारा हक का नहीं है હા, હા, और जो हक का नहीं है उसको प्राप्त करने का जो भाव होता है, किसी भी तरह से प्राप्त करने का, उसको रौद्र ध्यान बताया। ને અંદર જે હિંસક ભાવ પોતાના પ્રતિ થાય તે આર્ત ધ્યાન. चिंता, ચિંતા. ઓકે ઓકે. हाँ, ચિંતા મેળવી. ઓકે हाँ, બરાબર. वो चिंता को अर्थ ध्यान बताया और दूसरे को दुख देना, अनहक की चीज लेने का भाव होना, उसको रौद्र ध्यान बताया। બરાબર. तीसरा है धर्म ध्यान, जहां पर अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान होने की जो संभावना खड़ी होती है, वहां पे न होने दे अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, उसको दादा भगवान ने धर्म ध्यान बताया। પડી ગયું. जैसे चिंता होने का कोई ऐसा संजोग आया और अंदर शुरू हो गई चिंता, तो तुरंत उसको अंदर जागृति से उसको फेर दे कि नहीं, હમ. ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है, तो कि व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है। तो वो अर्थ ध्यान होने की जगह थी, उसको चेंज कर दिया, वो धर्म ध्यान हो गया। और ये धर्म ध्यान जो हुआ और अंदर जो हमें एब्सोल्यूट मिला है, जो हमें शुद्धात्मा का भान हुआ है, उसके अंदर रह के हम ये पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं कि अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं हुआ, उसकी जगह पे धर्म ध्यान हो गया। ये पूरा संयोग को हम देखते हैं, वो शुक्ल ध्यान होता है, उसका परिणाम शुक्ल ध्यान। એટલે શુક્લ ધ્યાન એટલે શુદ્ધાત્મા પદમાં રહીએ તે. हाँ, शुद्धात्मा पद में रह के हमें जो आज्ञा दृष्टि हमें प्राप्त हुई है, वो आज्ञा दृष्टि को कैसे हम फॉलो करते हैं, वो केवल वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में हम आते जाते हैं उससे। પડી ખબર. इसलिए दादा भगवान ने बताया, ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद हम जैसे जैसे आज्ञा समझते जाएंगे और आज्ञा जैसे जैसे हमारे में परिणाम होती जाएगी, वैसे वैसे मन वचन काया रूपी प्रकृति वाला जो भाग है वो धर्म ध्यान में रहेगा और अंदर जो हमें आत्मा का जो भान हुआ है वो वाला भाग है, वो शुक्ल ध्यान में परिणाम होता जाए। Very nice. પડી સમજણ. બરાબર. જય સત. बराबर। जय सच्चिदानंद। दीपिका जी, चंद्राबेन left. Oh, fine, no problem. I think I got a message actually. अच्छा, she must have got less connection. Okay, तो अभी टाइम हो गया है अपना सामयिक प्रतिक्रम दिखवाएंगे। Right. जय सच्चिदानंद। अपने धर्म को संभालना है, पर धर्म भयावह वहां हाथ डाला कि हाथ जलेगा। सो अपने स्वधर्म में रहना है और पर धर्म की जहां हमने किसी भी तरह से उसके अंदर जल्दबाजी की, दखा किया, तो उसका प्रतिक्रमण करना है। तो आज तक यही किया है, मेरा धर्म सही है, दूसरों का धर्म वैसा है, तो यहाँ पर हम प्रतिक्रमण करेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी आप हो? हाँ जी, हाँ, तो फॉलो करिएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में,
प्रज्ञा प्रकाश में आज दिन तक नामधारी दीपक आनंद से नामधारी संतोष आनंद से जहां जहां दूसरी कलम का भंग हुआ है, दूसरी कलम का भंग हुआ है, दूसरी कलम छूट गई है, दूसरी कलम छूट गई है, भेदभाव का कारण बना है, भेदभाव का कारण बना है, प्रेम स्वरूप नहीं रह पाए हैं, प्रेम स्वरूप नहीं रह पाए हैं, उन सभी दोषों को मैं अपनी अंतरात्मा दशा में, मैं अपनी अंतरात्मा दशा में, जागृत अंतरात्मा दशा में जागृत अंतरात्मा दशा में देखने का सामयिक प्रतिक्रमण करने की सामयिक प्रतिक्रमण करने की आप हमें परम शक्ति दे। आप हमें परम शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपकानंद अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो और संतोष अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपकानंद रिलेटिव है। हे दादा भगवान, आप रियल हो और संतोष अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपकानंद टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो और संतोषानंद जी टेम्पररी है। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज ये जो प्रश्न आया था आज कि मैं ही हूँ, वो बड़ा अच्छा है अपने साधना के लिए। एक मिनट। अपने में ही मेरापन, केवल आत्मा में ही मेरापन, और कोई चीज में मेरापन नहीं। आत्मा वो चैतन्य घन स्वरूप, शुद्ध चैतन्य, और केवल ज्ञान मात्र है। वो ज्ञान का पुंज है ऐसा, तो उसमें कोई क्रिया नहीं है, और सारा व्यवहार क्रिया वाला है, भेदभाव वाला है। उसको एक ही दृष्टि से देखकर, समझकर, अंदर से केंद्रवर्ती रहना है, और बाहर से एडजस्टमेंट से रहना है। ये जो मम्मी होती है वो बच्चों के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट नहीं लेते, आराम से लेते रहते हैं। ऐसा एडजस्टमेंट लेना है, लेकिन वो बच्चों से भेद पड़ने नहीं देते कभी। मम्मी को बच्चों से कभी भेद पड़ता ही नहीं है। बड़े अच्छे से डील करते, सब ड्रामा कर लेते, क्या से क्या ड्रामा करते, एक से एक बढ़िया ड्रामा। ऐसा ड्रामा करके निकल जाना है, लेकिन हमारा ड्रामा का हेतु क्या है? समभाव से निपटारा करना है। तो इस तरह से ये जो गलतियां हुई है उसका प्रतिक्रमण करके हमें निकल जाना है। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, जय सच्चिदानंद साहब। आप त्रिमंत्र बुलाएं, हम फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुखारो, सौव पावकपणासणो, सवपावप्पणासनो, मंगलाणम च संवेसेम, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल रविवार है, कल का प्रोग्राम इस तरह से है। सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि, 10:15 बजे गुजराती सत्संग, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। पधारिएगा जरूर से। उसमें हम दोबारा ये दूसरी कलम का धर्म संबंध में जो जो गलतियां हुई है उसका प्रतिक्रमण रखेंगे, और अलगपन के समय के साथ दिन भर समय मिलने पर यही दोहराएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, संतोषानंद जी, जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिलीप भाई, अम्मा जय सच्चिदानंद। भाई नलिनी बहन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन, पूर्णिमा बा जय सच्चिदानंद।
સચ્ચિદાનંદ અક્ષયભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ અનુજ, સચ્ચિદાનંદ અનુજ, ગૌતમજી સુનીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પૂનમભાઈ ચંપાબેન, કકા જય સચ્ચિદાનંદ, ભારતીબેન, મીનાક્ષીબેન જય સચ્ચિદાનંદ, બેન જય સચ્ચિદાનંદ, બેન જય સચ્ચિદાનંદ, અલગ અલગ જગ્યાએ જયપુરમાં સચ્ચિદાનંદ, ગૌતમજી જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ નથી આવતો તારો. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન, મણિનગર, ડોક્ટર નીનાબેન જય સચ્ચિદાનંદ, તરુબા જય સચ્ચિદાનંદ, ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, દિલીપભાઈ રેણુકાબેન જય સચ્ચિદાનંદ, મૂર્તિબેન જય સચ્ચિદાનંદ, ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, પ્રીતિબેન જય સચ્ચિદાનંદ, બિપિનભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, બોર્ડ ફિટ કરવાના સચ્ચિદાનંદ પધારિएगा जरूर से, जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद।